I'll be starting with the introduction part. जो पहला वाला part, what the PSC, SSB expect from us is कि we should understand कि basic economics का definition क्या होता है and what's the subject matter of economics. So basically जो question पूछा जाएगा introduction part से, that will focus on four things. Number one, that will be the definition of economics. और I expect कि आप लोगों को पता होगा कि economics क्या होता है, किसके साथ डील करता है. So the focus of the examiner will be testing कि आपको basic concept economics का पता है और subject matter पता है या नहीं पता है. Second, he will focus on the subject matter of economics. कि ये कैसा subject है, ये social science है, natural science है, art है कि क्या है. The third question will generally focus on the central problems of an economy. जो आपको पता होगा कि main economic problem क्या क्या होता है कि what to produce, how to produce, and for whom to produce. These are the central problems जिनके through we can't escape a system. And fourth, we'll focus on PPCs and opportunity cost. यानी we can decode it easily. पहला पार्ट हमसे डिमांड कर रहा है कि we should be expecting कि हमें चार चीजें पता हो. One, the definition of economics. Second, is subject matter of economics क्या है. Third, what are the central problems of an economy. And fourth, PPC or opportunity cost क्या होता है. So, I will be dealing by one-to-one path. पहले पार्ट में वो हमसे क्या पूछ सकता है. When I talk about the definition of economics, तो दो चीजें दिमाग में आ ही जाता है. Number one, कि who is the father of economics? Simple सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है. The answer being Adam Smith. Adam Smith is considered as the father of economics. क्यों? एक ऐसा बुक लिखा था इसने that has revolutionized the economic thought. अब बुक का नाम important है. So the name of the book was An Inquiry into the Nature and Cause of Wealth of Nations. Exactly, this is the name of the book that has been written by Adam Smith, the father of the economics. An inquiry into the nature and cause of wealth of nation. अगर short term में याद रखना है, then remember the simple term cause of wealth of nation. तो आपका आंसर निकल जाएगा. Second, economics किसके साथ डील करता है? You may be aware that economics have been derived from the two words, or cause. And mean और कॉस्ट का मतलब घर, हाउसहोल्ड, एंड नमीन का मतलब मैनेजमेंट. So he will test you on the etymological levels कि economics का definition का माने क्या है. So it becomes the management of the household. That's simple. What we do in economics. या पूछ सकता है कि इकोनॉमिक्स किन वर्ड से डिराइव किया गया है. So the answer became OCOS and NAMEEN. OCOS का मतलब household and NAMEEN का मतलब management. So the subject matter of the economics being is the management of the household. Next, when you talk about the management दो प्रकार का हो सकता है. One, you can manage a country जहाँ पे resources unlimited हो. So the problem of choice does not arise, or the problem of allocation, or the principle of allocation does not arise. क्योंकि infinite resources है, किसी को भी बांट दो, कोई issue नहीं होता. But we know कि we have the scarce resources, यानी the principle of scarcity. इससे क्वेश्चन बन सकता है.
सी स्कार्स का मतलब होता है हद से कम। अज्यूम आपके घर में 10 गेस्ट आने वाले हैं बट यू हैव ओनली 1 पेप्सी एट योर डिस्पोजल। 10 गेस्ट आने वाले हैं, एक ही पेप्सी है, एक पेप्सी बेच पाओगे 10 बंदों में। दैट इज व्हाट वी कॉल एज एलोकेशन एंड यहां पे रिसोर्सेज स्कार्स है। सो व्हाट वी डू इन इकोनॉमिक्स इज वी allocate the scarce resources. Appropriate answer. यानी आप ऑप्शन में देखोगे कि स्कार्सिटी है कि नहीं है। जहां पे भी आपको लगे कि स्कार्सिटी है, that would be your answer. कि economics deal with the allocation of scarce resources. अब इस स्कार्सिटी से क्या होता है? जब लिमिटेड रिसोर्सेज हो, then it leads to a beautiful thing called as problem of choice. कॉमन सा एग्जांपल है, जब आपके जेब में पैसा कम होता है then we try to rationalize the expenditure. भाई खाने पे ज्यादा करते हैं या बुक्स पे ज्यादा करते हैं as per the parties वाला पार्ट। यानी वो पूछेगा स्कार्सिटी से कौन सा प्रॉब्लम आता है, the problem of choice arises due to scarcity. And you can easily deal with the 3 questions कि basic economic definition, second allocation of scarce resources, third the problem of choice arises due to principle of scarcity. Next, subject matter पे क्या क्या पूछ सकता है? Usually when talk about a subject matter तो हम 2 चीजों का इस्तेमाल करते हैं। क्या ये पॉजिटिव साइंस है या नॉर्मेटिव साइंस है? The first word is positive science. The second word is normative science. Positive science. कल क्या था और आज क्या है? What was and what is positive science. यानी पॉजिटिव साइंस में यू टॉक अबाउट कि कल सर पेन 10 रुपए का था, आज 12 रुपए का है। दिस विल गिव यू द एग्जैक्ट पोजीशन और द रियलिटी कंडीशंस ऑफ एन इकोनॉमी। इकोनॉमिक्स इज पॉजिटिव साइंस एग्जैक्टली, क्योंकि ये हमें बोलता है कि कल हमारा जीडीपी क्या था और आज हमारा जीडीपी क्या हो सकता है। देन व्हाट इज नॉर्मेटिव साइंस? अभी मैंने बोला कल पेन 10 का था, आज 12 का है और मैं दुआ करता हूं ये 2 रुपए का हो जाए, तो मैं 5 पेन खरीद लेता हूं। नॉर्मेटिव साइंस व्हाट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए। डोंट गेट कंफ्यूज। पॉजिटिव साइंस व्हाट वाज, व्हाट इज क्या था क्या है। नॉर्मेटिव साइंस व्हाट ऑट टू बी, कैसा हो सकता है। आई वांट कि पेन 2 रुपए का हो जाए, या आईफोन कल तक 60,000 का था, आज 70,000 का है। दिस बिकम्स पॉजिटिव पार्ट, पॉजिटिव साइंस, और मैं दुआ करता हूं कि ये आईफोन 5,000 का पहुंच जाए। नॉर्मेटिव साइंस। So the answer becomes that economics is both a positive science as well as the normative science. Answer मिल गया? So we'll be discussing the third part, that will be the central problem of an economy. आपसे पूछा जाएगा कि कौन-कौन सा central problem of economy होता है और how to deal with those problems. Usually exam में आपसे 3 चीजों का पूछेगा। First, what are the basic central problem of an economy? So usually we talk about 3 problems होता है इसमें। Number 1 is what to produce. क्या बना सकते हैं? The answer being, sir, we can produce 2 types of goods. Either it can be consumer good, खाने का चीजें, or it can be the capital goods that can help in the infrastructure building or the capital formation only. So the answer becomes
कि we can produce consumer goods and we can have capital goods. Now बेसिक अगर क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट टू प्रोड्यूस में क्या बनाया जा सकता है, तो आंसर भी वी कैन प्रोड्यूस कैपिटल गुड्स और वी कैन प्रोड्यूस कंज्यूमर गुड्स, बट विच इज द अप्रोप्रिएट अमाउंट कि क्या बनाए। अगर हमारे पास 100 रुपए है, हाउ मच शुड बी कंट्रीब्यूटेड टू द कंज्यूमर गुड और कितना वी शुड डिवोट टू द कैपिटल गुड्स। इनका रेशियो विल डिटरमाइन कि इंडिया प्रोग्रेस करेगा या नहीं करेगा। आई रिपीट, कितना पैसा आप कंज्यूमर गुड पे लगाते हो और कितना पैसा आप कैपिटल गुड्स पे लगाते हो, दैट विल डिसाइड द फ्यूचर ऑफ कंट्री सर। अब जो भी पैसा आप कंज्यूमर गुड पे लगा रहे हो, दैट विल नॉट गिव द इनकम, सो इट इज क्लासिफाइड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। सरल भाषा में बोलूं तो जो भी चीजों पे आप खर्च करते हो, खाने वाने की चीजों पे, that does not generate any income, so this will be the revenue expenditure part. Second, कि capital goods पे जो भी खर्चा करेंगे, for example we are planning to have the road या पार्क बनाएंगे या हॉस्पिटल्स बना सकते हैं and more. Now जो भी आप पैसा capital goods पे लगाते हो, that will be classified as capital expenditures. यानी this what to produce gives us 4 dimensions. एक कि हम 2 प्रकार का चीजें बना सकते हैं, we can produce consumer goods, we can produce capital goods also, but this can also provide you कि 2 प्रकार का expenditure भी हो सकता है सर। One expenditure does not give the income, that will become the revenue expenditure, the expenditure on the consumer goods, and the second being the capital goods पे जो भी आप खर्चा करते हो, that is an asset, it will create an asset. So the answer becomes कि capital expenditure कौन सा खर्चा होता है which help in the infrastructure development or the capital formation, जिससे saving ratio country का बढ़ जाता है। I hope this is clear. The second problem is how to produce, कैसे बनाओगे। So the answer being simple. Usually there are 2 types of technique of production. एक तो है जहां पे हम लेबर का इस्तेमाल ज्यादा करेंगे and the second है जहां पे कैपिटल का इस्तेमाल ज्यादा करेंगे। Now usually based upon the factor of production आप कौन सा इस्तेमाल कर रहे हो? We have 2 types of techniques. First is labor intensive technique and the second being capital intensive technique. Simple में LIT stands for labor intensive technique and CIT stands for capital intensive technique. So the examiner आपसे पूछेगा कि इंडियन इकोनॉमी में हमें कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए? Should we go for labor intensive technique or should we resort to capital intensive technique? Usually आंसर इसका ये होगा, अगर आपकी कंट्री में लेबर सरप्लस है, लेबर सरप्लस का मतलब सिंपल भाषा में द अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स आर ह्यूज इन द कंट्री। दिस विल गिव एन इंडिकेशन कि अगर लेबर सरप्लस में है, इजली अवेलेबल होगा, तो उसका कॉस्ट ऑफ हायरिंग भी कम ही होगा, यानी द कॉस्ट ऑफ द लेबर इज कॉल्ड वेज या सैलरी बोल। यूजुअली डेवलपिंग कंट्रीज में वी हैव द इशू ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, लेबर सरप्लस, सो वी शुड फोकस ऑन लेबर इंटेंसिव टेक्निक LIT। आई रिपीट, आपका आंसर होना चाहिए कि अगर आपका डेवलपिंग कंट्री है जहां पे रॉ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यानी लेबर का खर्चा कम है, so the better is to employ labor intensive technique। अगर आपकी कंट्री में लेबर सरप्लस में नहीं है जबकि you have the capital in abundance,
अब कैपिटल हमारी क्वांटिटी हमारे पास ज्यादा है, इसका मतलब है कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी कम होगा। यूजुअली दिस इज द केस ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज, डेवलप्ड कंट्रीज सॉरी, जहां पे the focus is on the capital intensive techniques CIT। यानी I repeat, हमारे पास 3 प्रॉब्लम सेंट्रल प्रॉब्लम दिखाना में था। पहला था आपका what to produce, तो हमने बोला आपको you can produce consumer goods, you can produce capital goods। सेकंड डिसाइड करना है कि how to produce, कैसे बनाएं। Usually you can produce by employing more amount of labor or you can employ more amount of capital, depends upon economy to economy, वहाँ पे हालात कैसा है। यूजुअली आपका आंसर होना चाहिए कि अगर आपका डेवलपिंग नेशन है सो द बेस्ट इज लेबर इंटेंसिव टेक्निक, और अगर आपका डेवलप्ड नेशन है द बेस्ट आंसर इज कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। सो ट्राई टू फोकस ऑन के ऑप्शन में आपको क्या दे रहा है कि अगर कॉस्ट, हाँ सर अगर ऑप्शन में डेवलपिंग और डेवलप नहीं था, सो हाउ कुड वी जज कि हमें कौन सा सिलेक्ट करना चाहिए। आंसर इज सिंपल, दो चीजें आप दिमाग में रखोगे। नंबर 1, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ लेबर, यानी यू आर टॉकिंग अबाउट वेज, एंड सेकंड व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, and you are talking about the rate of interest। just compare them, जो कम होगा either wage या capital, दोनों में से जो कम होगा that will be employed। आंसर मिला। I repeat, अगर यह ऑप्शन को employ 2 factors, एक साइड है capital जो आपको मिलता है 12 रुपए में, सेकेंड लेबर जो आपको मिलता है 10 रुपए में। अब इकोनॉमिक्स में यू टॉक अबाउट द लीस्ट कॉस्ट फंक्शंस, जहां पे हम कोशिश करेंगे कम खर्चे में वी हैव द मैक्सिमम आउटपुट और मैक्सिमम सैटिस्फैक्शन बोल सकते हैं उसको। सो यहां पे द कॉस्ट ऑफ लेबर इज 10 and the cost of capital is 12, so better option for you is to select labor। and you first see कि factors of production जिनको सिंपली फैक्टर प्राइसेस कहा जाता है। The least factor prices should be accepted। Second, अगर आप कॉस्ट सेम था, एग्जाम्पल विल गिव यू कि भाई लेबर का कॉस्ट और कैपिटल का कॉस्ट सेम, आप कैसे डिसाइड करोगे? So you can choose the second parameter, what we call as output elasticity। चाहे वो लेबर का हो या कैपिटल का हो। अब सिंपल मीनिंग में अगर हमें समझाना होगा कि आउटपुट इलास्टिसिटी क्या होता है, तो हम कहते हैं कि अगर मजदूर आपने लगाया तो उसके लगाने से आपके आउटपुट में कितना चेंज होगा, यानी वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रोडक्टिविटीज। टॉकिंग अबाउट प्रोडक्टिविटीज तो हम बोल रहे हैं कि लेबर का क्वालिटी और कैपिटल का क्वालिटी कैसा है। अगर हम लेबर को एम्प्लॉय कर रहे हैं तो आउटपुट में कितना चेंज होगा, और अगर हम कैपिटल लगाते हैं तो आउटपुट में कितना चेंज होगा। जो आउटपुट में ज्यादा चेंज लाएगा दैट शुड बी सिलेक्टेड, इजी। यानी इफ द आउटपुट इलास्टिसिटी ऑफ लेबर is greater than output elasticity of capital, तो कौन सा लगा? सिंपल, लेबर वाला, क्योंकि लेबर इज मोर कॉन्ट्रीब्यूटिव, ये हमें आउटपुट में ज्यादा फंक्शन दे रहा है, तो बेटर इज ये वाला लगा। अगर इसका ज्यादा आउटपुट इलास्टिसिटी ऑफ कैपिटल इज ग्रेटर देन आउटपुट इलास्टिसिटी ऑफ लेबर, सो यू शुड सिलेक्ट द ऑप्शन कैपिटल वाला। यानी इट इज इजी टू डील विद सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। दूसरे फंक्शन में हमने देखा कि हाउ टू प्रोड्यूस। सिंपल, अगर आपसे पूछा जाता है कौन सा टेक्निक है प्रोडक्शन का, आंसर बीइंग लेबर इंटेंसिव एंड कैपिटल इंटेंसिव। सिंपल का क्वेश्चन बन सकता है कि डेवलपिंग नेशन है तो कौन सा लगाना चाहिए, द आंसर बीइंग लेबर इंटेंसिव। डेवलप्ड है तो कौन सा लगाना चाहिए, द आंसर बिकम्स कैपिटल इंटेंसिव।
अगर आप फैक्टर प्राइसेस को मैच करोगे, सीधा फैक्टर प्राइसेस जिसका कम खर्चा है वही लगाओगे, इफ द वेज इज ग्रेटर देन रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो क्या लगाया जाएगा? कैपिटल इंटेंसिव। अगर वेज है कम एज कंपेयर टू रेट ऑफ इंटरेस्ट, देन द बेटर इज टू एम्प्लॉय लेबर इंटेंसिव टेक्निक। अगर ऑप्शन में न डेवलपिंग था न फैक्टर प्राइसेस था, and the examiner gives you output elasticity, so choose that factor which has the highest output elasticity. That will be your answer. Simple. Moving to the next is third problem of an economy, commonly called as for whom to produce. किसके लिए बना है? Based upon the standard of living, हमने इंसानों को तीन प्रकार से बांटा हुआ है. The first is the poor class, the second is the middle class, and the third is the luxury class. हम रिच के साथ इकोनॉमिक्स में डील नहीं करते, वो try to have a stable function, इसलिए हम लग्जरी क्लास दिखा रहे हैं. अब आप देखिए कि आपकी कंट्री में तीनों में से पॉपुलेशन कंपोजिशन किसका ज्यादा है. Assume इंडिया में the poverty is for example 37%, मिडिल क्लास वाले मान लो 50%, लग्जरी वाले मान लो for example 13%. Now you have to allocate the resource in such a way कि every composition of the population get the resources. यानी अगर अब हमारी कंट्री में मिडिल क्लास ज्यादा है तो मिडिल क्लास वाली चीजें ज्यादा बनेगा. फॉर एग्जांपल क्रैक जैक, गुड डे, वो बिस्किट ज्यादा बनेंगे. अगर पुअर वाले ज्यादा थे देन वी कैन गो फॉर पार्ले-जी वाला बिस्किट, वी कैन गो फॉर ग्लूकोज वाला बिस्किट. अगर लग्जरी वाले ज्यादा थे यू कैन हैव ओरियो, यू कैन हैव डार्क फैंटेसी and more. यानी this was an easy वाला part. For whom to produce, किसके लिए बना रहे हैं. Based upon the economic strength हम choose करते हैं कि हमें क्या बनाना चाहिए. अगर कंट्री में poor populated ज़्यादा है, so the resources should be devoted, more resources should be devoted to the poor only. अगर middle class ज़्यादा है, then the answer becomes कि सारे resources ज़्यादा middle class में जाएंगे. अगर अब luxury वाले ज़्यादा है, that means more fantasies and more Oreos can be produced. यानी आपका आंसर निकल गया तीनों का. सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा, what are the central problems of economy? 1. What to produce. 2. How to produce. 3. For whom to produce. But there's also one central problem of the economy associated with the above three problems. Above three problems हम देखना चाहेंगे कि कोई भी resources unutilized ना रहे. I mean कि excess capacity should be minimized. अब ये excess capacity क्या होता है? Assume आप 4 रुपए पे कोई भी चीज बना सकते हो, but you are taking 6 rupees. जो ये 2 रुपए बचता है, extra cost is excess capacity. So जब भी आप सेंट्रल प्रॉब्लम इकोनॉमी से डील करेंगे तो एक्सेस कैपेसिटी शुड बी मिनिमाइज्ड. यानी सिंपल भाषा में बोले, the fourth central problem economy being full utilization of resources. This was the third part in the introduction. जो मैंने आपको कहा था कि इंट्रोडक्शन में वो क्या पूछ सकता है. First, you can ask the questions related to the definition of economics. फिर मैंने बोला subject matter, it's a positive as well as negative science. Third, central problem of economy. Fourth, वो expect करते हैं हम question, वो 2 चीजों में डाल सकता है. First, what we call as production possibility frontier.
यानी सिंपल में पीपीसी क्या होता है, एक्सपेक्टेड, क्योंकि ऑप्शन नहीं है उसको इस चैप्टर में निकालने का कोई, द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिकम्स सेंट्रल प्रॉब्लम्स या पीपीसी या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब पीपीसी क्या होता है? फॉर एग्जांपल यू हैव गिवन टू रिसोर्सेज, इट शोज amount of goods to be produced. Let those goods be X and Y with given technology and available resources. अगर आपके पास कोई भी रिसोर्स है, उससे मान लीजिए कि हम दो चीजें बना सकते हैं X एंड Y, बट एक का बढ़ना मतलब दूसरे का घटना जरूरी है, क्योंकि रिसोर्सेज आपके पास लिमिटेड है। Either you can allocate, for example, you have 100 rupees. You can allocate it among A and B. अगर फॉर एग्जाम्पल A पे मैंने 70 डाला, देन B पे हमने 30 डालना ही डाला, सिंपल। अगर अब B में बढ़ाना, assume I am increasing to 40, that means A का काम जरूरी होना है, it has to be 60। इसीलिए PPC का शेप हमेशा कॉन्केव बनता है। So he will tell you okay, what is the shape of the PPC? PPC looks like this one. This is X good and this is Y. अगर आप शिफ्ट करना है, फॉर एग्जाम्पल कीपिंग Y कॉन्स्टेंट एंड X को बढ़ाना है, तो ये बना X, बना X1। कम करना है, ये हो गया X स्टार। यानी PPC does not look like the convex to the origin, but उल्टा है, concave to the origin। क्यों? The answer being कि सब limited resources है। ये था आपका फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर शोइंग द शिफ्ट कि Y यहाँ ही है कांस्टेंट, X को बढ़ा, दैट मींस यू आर शिफ्टिंग X only। अगर अब वो बोल रहा है Y शिफ्ट दिखाओ, Y would be inverse। assume ये हमारा original PPC था, PP, this is X good and this में Y good। अब हमें Y का क्वांटिटी बढ़ाना है, this becomes Y1, this becomes Y2, this will show you the Y shape part। So don't get confused, it will show you the two goods that can be produced with the available technology and the available resource one। ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, बेसिक डेफिनेशन ऑफ पीपीसी क्या होता है, और शेप भी पूछा जा सकता है। तो द नेक्स्ट फोर विल बी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है। इट इज द बेस्ट नेक्स्ट ऑल्टरनेटिव कॉस्ट। Now, don't get confused with the word alternative. Alternative का मतलब है कि is providing two choices। Assume एक चीज को बनाने में 10 रुपए लग रहा है, अगर सेकेंड यूनिट बनाना है तो 12 रुपए लग रहा है। Then the opportunity cost will be the difference of the first X1 and the difference of the price to P2, for example X2, यानी 2 रुपए आपका opportunity cost। Opportunity cost will tell you the best next alternative cost or the substitution cost, आप बोल सकते हो। कुछ लोग इसको रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी कहते हैं, यानी you are replacing one combination by the other combination। हमने आपने 10 नहीं चूज किया, आपने 12 चूज किया, दैट मींस आपका खर्चा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट शायद ज्यादा हो सकता है। यूजुअली
प्रोड्यूसर हमेशा वो चूज करेगा जो उससे मेन कॉस्ट पे मैक्सिमम प्रॉफिट देगा। अगर अब पीपीसी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट will be constant कब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कांस्टेंट तब होता है जब पीपीसी एक स्ट्रेट लाइन बनाता है। आंसर बी कि जब पीपीसी इज अ स्ट्रेट लाइन देन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आर कांस्टेंट। अगर पीपीसी ऐसा बना या पीपीसी ऐसा बना that means the cost will be constant sir। अगर अब PPC चाहे कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो, यूजुअली कॉनकेव होता है वो, अगर इसमें it is a variable, ये चेंज होता रहता है, either it can increase or it can decrease depend upon कि प्रोड्यूसर कौन सा कॉम्बिनेशन चूज कर रहा है। यानी हमारा पहला पार्ट कवर हो गया इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स, जिसमें आपको फोकस करना है डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स पे, स्कार्सिटी वर्ड पे, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस पे। सेकंड हमने कहा कि जस्ट फोकस ऑन द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। थर्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है एंड द पीपीसी क्या होता है। द नेक्स्ट चैप्टर इज डिमांड। डिमांड चैप्टर से एग्जामिनर के पास चॉइस क्या क्या है। फर्स्ट वो पूछ सकता है कि भाई डिमांड क्या होता है, he can give the some of the features और बोलेगा क्या ये डिमांड है या नहीं। सो डिमांड, if three conditions are being satisfied I classify it as a demand। फर्स्ट इंसान को विलिंगनेस होना चाहिए टू बाय। Second, he should have the ability to pay। Third, what we call as time factor। आंसर निकल गया। डिमांड आमतौर पे तीन चीजों का बनता है। फर्स्ट, you should have the willingness to buy। आपको ख्वाहिश होना चाहिए कोई भी चीज परचेज करने का। Without willingness, अगर आप कोई चीज परचेज कर रहे हो, that cannot be classified as a demand, but it's a type of a demand। वो हम आगे डील करेंगे कभी। First, willingness to buy। Assume मैं I-10 खरीदना चाहता हूँ, ability to pay। I have the money and I'm going to the shopkeeper और वहाँ पे पैसा रख रहा हूँ and taking the thing, iPhone वाला। Third, मुझे इस्तेमाल करना है आज ही के टाइम पे, प्रेजेंट टाइम। अगर तीनों कंडीशन सैटिस्फाई हुआ दैट इज डिमांड। अब क्वेश्चन होता है बच्चों का यूजुअली कि सर मुझे सिर्फ ख्वाहिश है, एबिलिटी नहीं। आई वांट टू बाय अ होम इन लास वेगस, ये मेरा विलिंगनेस टू बाय, बट एबिलिटी नहीं, तो हम इसको डिमांड कहेंगे ना सर, इट बिकम डिजायर। यानी एग्जामिनर का क्वेश्चन आपने क्रैक कर लिया। वो पूछेगा डिमांड और डिजायर में क्या फर्क होता है। डिमांड में यू हैव द विलिंगनेस टू बाय, यू हैव द एबिलिटी टू पे, यू हैव द टाइम फैक्टर आल्सो, बट डिजायर में यू जस्ट हैव द विलिंगनेस टू बाय। मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ ले आऊंगा, बट पता नहीं है कब ले आऊंगा। That becomes the desire. But if you really brought that, it will become the demand. Time factor is an important concept. इसको भूलना नहीं। Time factor is a condition for demand. कि the use of the good should be in the present context. It should not be in the future context also. अगर अब desire है, willingness to buy है, time factor भी है, but ability नहीं, क्या बनेगा, डिजायर या डिमांड? मैं कह रहा हूं कि मुझे ख्वाहिश है लास वेगस में मकान परचेज करने की, और कब? 2025 में। यानी I have the two conditions, willingness to buy and I have the condition time factor also।
but I don't have the ability to pay. So this will be classified as a desire. तो ये क्वेश्चन आप लोगों से गलत नहीं होना चाहिए कि वो डिमांड डिजायर के बारे में पूछता है या सिंपल डिमांड क्या होता है ना। डिमांड से इंपॉर्टेंट बनता है एग्जामिनर के लिए लॉ ऑफ डिमांड। अगर मैं सिंपल भाषा में कहूं लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, कुछ चीजें कांस्टेंट रखो साइड के लिए, and those conditions are called as stress variables. एक ग्रीक वर्ड दिया गया आपके बुक्स में जिसका मतलब है other things remaining constant. लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि कुछ चीजें साइड रखो फॉर टाइम being. There is an inverse relationship between price and demand. अब ये इनवर्स रिलेशनशिप क्या होता है कि अगर किसी भी चीज का प्राइस ऊपर हो जाता है तो कंज्यूमर विल बाय लेस ऑफ इट, और अगर किसी का भी कीमत नीचे हो जाता है तो कंज्यूमर विल बी ऑन द एडवांटेज, वो ज्यादा खरीदेगा। सिंपल लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। मार्क दिस पॉइंट। दिस विल बी योर क्वेश्चन कि कौन सा रिलेशनशिप है, डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है। यूजुअली वी हैव इनडायरेक्ट और इनवर्स रिलेशनशिप। यानी price Px is inversely proportional to Q dx, जहां पे Px का मतलब है प्राइस ऑफ x, कोई भी x हो सकता है। Q dx का मतलब है क्वांटिटी डिमांडेड फॉर कमोडिटी X। अब Q क्यों? क्योंकि क्वांटिटीज में आप डिमांड करते हो, ये 4 अनार चाहिए या 5 बनाना चाहिए, इट्स ऑलवेज इन द क्वांटिटीज। इसलिए मैंने कहा कि प्राइस इज द इनवर्स फंक्शन ऑफ द डिमांड। यानी अगर किसी भी चीज का प्राइस बढ़ जाएगा तो डिमांड कम होगा, और अगर प्राइस कम होगा तो डिमांड ज्यादा हो जाएगा। दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला पार्ट। यानी आपका क्लियर हो गया एक क्वेश्चन कि लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है और इनवर्स रिलेशनशिप है दो में, प्राइस और डिमांड। सो आई वाज टॉकिंग कि लॉ ऑफ डिमांड क्या दिखाता है, इट शोज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड प्राइस। मतलब Px is inversely proportional to Q dx, जहां पे Px का मतलब है प्राइस ऑफ x कमोडिटी, x कुछ भी हो सकता है, and this is the inversely proportional sign. That means both the variables will move in the opposite direction. Q dx, dx का मतलब डिमांड फॉर x, Q का मतलब क्वांटिटी डिमांड फॉर x, क्योंकि जब आप डिमांड करते हो यू डिमांड इन द क्वांटिटीज। लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि प्राइस ऊपर जाएगा तो डिमांड कम होगा, और अगर प्राइस कम होगा तो डिमांड ऊपर जाएगा। Now this law can be represented via two things. या तो हम इसको टेबल रिप्रेजेंटेशन में कर सकते हैं, या तो हम 2 डायमेंशनल डायग्राम इस्तेमाल कर सकते हैं एंड डिराइव अ कर्व। अगर मैं इसी लॉ को टेबल रिप्रेजेंटेशन में दिखा दूं, so we can have concept of individual demand schedule and curve। इंडिविजुअल का मतलब एक होता है। अब if I am showing you the law of demand via a table representation, ये बना टेबल, this is usually called schedule। एक इंसान का दिखाऊंगा इंडिविजुअल,
अभी मैं डिमांड पर आ रहा हूं, सो इट बिकम द इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। अज्यूम एक साइड से प्राइस रखता हूं, एक साइड से डिमांड। जब प्राइस 1 रुपी हुआ करता था, आई यूज्ड टू डिमांड 10 आइसक्रीम्स। अब प्राइस इंक्रीज हुआ 2, so I will demand 9 only. Price increase हुआ 3, I am going for 8. Price increase to 4, I am going for 7. So make a combinations. Combination will tell you the relationship between price and demand. यानी जब 1 रुपए प्राइस हुआ करता था तो we used to demand 10, 1:10. सेकंड, जब 2 रुपए प्राइस हुआ करता है we used to demand 9, 2:9. थर्ड become 3:8, 4:7. This is commonly called as individual demand schedule, represent the demand for one individual at a particular time period of time. अगर ऊपर से देखो 1, 10, price increased to 2, the demand increased to 9. Price increased to 3, the demand increased to 8. And price increased to 4, the demand increased to 7. अगर आप नीचे से देखो, जब 4 प्राइस हुआ करता था, the demand was 7. Price reduced to 3, the demand increased to 2. Price falls to 2, the demand increases to 2. यानी this table will prove you the law of demand है। अगर आप इसी कॉम्बिनेशन को ग्राफ दिखा दो, assume एक साइड से प्राइस, एक साइड से डिमांड। व्हाट वाज द प्राइसेस? 1, 2, 3, 4। डिमांड पहले 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10। मैंने उल्टा नहीं किया, तो लाइन सेगमेंट स्टार्ट फ्रॉम द 0, 1, 2, 3, 4, 5, इसके पहले 7 है। What was the first combination? जब 1 रुपए प्राइस हुआ करता था, I used to demand 10 आइसक्रीम्स। 1:10, 2:9, 3:8, 4:7. अगर you will join the meeting points and try to derive the curve, usually it looks like this wala part. DD, called as individual demand curve. तो आप अच्छे से नोटबुक्स में बनाएं। So it will look like a convex shape या rectangle parabolic बोलो। So जो क्वेश्चन पूछेगा वो the shape of individual demand curve is downwards या convex to origin या rectangle parabolic भी बोलो। तो आंसर आपको मिल गया कि डिमांड का शेप क्या होता है, DD। ये हमने डिराइव किया एक बंदे का इंडिविजुअल शेड्यूल और इंडिविजुअल डिमांड कर्व, बट he will also test you on market wala part. So the next expected question is कि market demand schedule क्या होता है and market demand curve क्या होता है। अभी मैंने आपसे कहा कि इंडिविजुअल में हमने एक बंदे को लिया, बट मार्केट में एक ही बंदा नहीं होता, इसलिए वी कैन गो फॉर द मार्केट एनालिसिस और मार्केट शेड्यूल और मार्केट कर्व। अब मार्केट डिमांड शेड्यूल आपको दिखाएगा टोटल डिमांड इन द मार्केट बाय ऑल द मार्केट पार्टिसिपेंट्स। Assume, अब मैं इनफाइनाइट कंज्यूमर नहीं ला सकता यहाँ पे। Assume हमारे मार्केट में 3 ही कंज्यूमर हैं,
Let those be x, y, and z. So you have to derive market schedule, एक साइड से price, keep this as the price of ice cream. This column is the demand by x. This column will tell you demand by y. ये वाला demand by z. Price 1. जब 1 रुपये प्राइस हुआ करता था, x used to demand 10, y used to demand 20, z used to demand 5. Now the price increased to 2. Definitely x will reduce the demand to 9, y will go for 19, and he will go for 4. Price अभी भी ऊपर ही जा रहा है 3. The combination becomes 3, 18, and 3. Now अभी तक हम इन दोनों का देख रहे थे. पहले वाले शेड्यूल में you were talking about the individual part. अब मार्केट में है you have the 3 players. जब प्राइस 1 रुपए हुआ करता था, what was the total demand done by x, y और z कितना था? यानी we have the market demand, which means demand by x plus demand by y plus demand by z is equal to market. यानी 10 plus 20 plus 5 is 35. 9 plus 19 plus 4, 23 और 9, 27, 18, 21, 20, 9, 21, 29. This will be 32 and this will be 29. Yani, when the price was 1, the total demand being 35. When the price was 2, the total demand being 32. And the price are 3, the total demand being 29. अगर आप इस पे और इस पे आप कर्व बनाते हो, then you can get the market demand curve. यानी easy है market demand curve derive करना. एक साइड से price, एक साइड से market demand. Price 1, 2, 3, market demand 29, 32, 35. जब 1 रुपए प्राइस हुआ करता था, the total demand in the market was 35. जब 2 था 32, 3 था 29. Join the points. You get a curve. So the next topic becomes exception to the law of demand. ये वो जगह है जहाँ पे law of demand नहीं चलता है. इसलिए इनको कहा जाता है कि factors influencing demand also. कौन-कौन सा जगह है जहाँ पे law of demand नहीं चलता? First, income of the consumer. जब मेरा इनकम ही नहीं है तो मैं प्राइस ऊपर जाए मार्केट में या नीचे जाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. So the first constraint or factor जो डिमांड पे इन्फ्लुएंस करेगा that will be the income of the consumer. Second, habit. जहाँ पे हैबिट का बात आता है वहाँ पे भी लॉ ऑफ डिमांड नहीं चलता. फॉर एग्जाम्पल किसी को कॉफी पसंद है और कॉफी का प्राइस इनफाइनाइट भी हो जाता है, स्टिल he will purchase that. The word is habit. Third, जहाँ पे एडिक्शन का बात है वहाँ पे भी लॉ ऑफ डिमांड नहीं चलता. अब दो चीजें आ गया, हैबिट और एडिक्शन. शॉर्ट टर्म के लिए आपका कोई भी शौक रहेगा that will be habit, और लॉन्ग टर्म वही एडिक्शन बन जाता है. यानी the short term addiction is habit and the long term habit is addiction. जहाँ पे एडिक्शन का बात आता है, फॉर एग्जाम्पल नारकोटिक्स वाले या किसी को खाने का शौक होता है, फूडीज वाले पार्ट, उनके लिए लॉ ऑफ डिमांड नहीं चलता. चाहे पिज्जा का भी कितना प्राइस हो, हमें तो खाना ही खाना. नेक्स्ट, वेल्थ ऑफ द कंज्यूमर.
दिस यूजुअली गोज विद द लग्जरी वाला क्लास लोग, कि उनके पास इतना पैसा है कि चाहे प्राइस ऊपर जाए या नीचे जाए कुछ फर्क नहीं पड़ता, दे विल स्टिल बाय दैट। जहाँ पे वेल्थ एक्यूमुलेशन हो वहाँ पे भी लॉ ऑफ डिमांड नहीं चलता। मेरे पापा प्रेसिडेंट थे, दादा गवर्नर थे, इसलिए मुझे पैसे का टेंशन नहीं है, पैसा नीचे जाए या ऊपर जाए, आई विल नॉट फॉलो लॉ ऑफ डिमांड। टेक द एग्जांपल ऑफ उमर अब्दुल्ला वाला पार्ट। उसको पैसे देखने का जरूरत क्या है, उसके पास वेल्थ ना एक्यूमुलेट हो चुका है कि he can feed it. War zone situations. और जो अभी रेप चल रहा है चाइना और इंडिया में, अगर अनफॉर्चुनेटली अगर चाइना ने अटैक किया इंडिया में, उस टाइम पे हम दुकानदार के पास थोड़ी जाएंगे सर पहले प्राइस कम कर दो फिर हम आलू खरीदेंगे। सो जहाँ पे वॉर टाइम सिचुएशन आता है वहां पे भी लॉ ऑफ डिमांड नहीं चलता। नेक्स्ट, contingencies और emergencies। अब पापा बीमार हो गए तो मैं टैक्सी वाले को बोल रहा हूँ चलो हॉस्पिटल, उस टाइम पे टैक्सी वाला अगर 500 रुपये या 1000 भी ज्यादा मांगता है तो आई हैव टू पे। इमरजेंसी है, उस टाइम पे नेगोशिएशन और लॉ ऑफ डिमांड डज नॉट अप्लाई। जहाँ पे इमरजेंसी का बात आए, वॉर का बात आए, कॉन्टिजेंसी का बात आए, द लॉ ऑफ डिमांड विल नॉट अप्लाई। नेक्स्ट, कुछ ऐसा भी हो सकता है कि मैं आज चीज खरीद नहीं रहा क्योंकि मुझे पता है कि कल इससे भी कम चीज हो सकता है। अज्यूम मैं अभी गाड़ी नहीं खरीद रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि अगर बजट आएगा आगे तो शायद टैक्स रेट कम हो सकता है तो मैं तब खरीदूँ। आज प्राइस कम हो गया है बट मुझे एक्सपेक्टेशन के फ्यूचर में इससे प्राइस और कम होगा, उस टाइम पे भी लॉ ऑफ डिमांड नहीं चलता। यानी एक्सपेक्टेशंस अबाउट द फ्यूचर या सिंपली बोलो फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस, अगर आपको लगता है कि प्राइस और कम होगा then you will not demand the good। यानी this whole simple topic कि factors influencing demand या exception to the law of demand क्या है। Usually income है, wealth है, it can be war situations, it can be habits, it can be preferences, taste preferences या बाकी भी हो सकता है। Try to find out कि एग्जाम में आपसे क्या क्या ऑप्शन में दे रहा है, अगर वो यही चीजें दे रहा है जहाँ पे नेसेसिटी है, इमरजेंसी है, तो लॉ ऑफ डिमांड नहीं चलेगा। अब इसी पे एक चीज बेस है एक्सेप्शन में ही, व्हाट वी कॉल एज, सिंपल सा पूछ सकता है कि वैलिड इफेक्ट क्या होता है। वैलिड इफेक्ट नंबर 1 इज एन एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड। ये लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो नहीं करता। यूजुअली एक इकोनॉमिस्ट थे बाय द नेम ऑफ थॉर्स्टीन वेबलिन, इन्होंने एक बुक लिखा था थ्योरी ऑफ लेजर क्लास, जहां पे he analyzed the leisure वाला क्लास वाला पार्ट और फाउंड किया एक अजीब चीज। कुछ लोगों के लिए जितना हाई प्राइस होगा उनके लिए उतना सब्सक्रिप्शन शायद चीज ज्यादा देता है, और जितना प्राइस कम होगा उसका मतलब है कि उतना सब्सक्रिप्शन वो कम दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आजकल यू ऑल प्रेफर कि मुझे इंपोर्टेड जीन्स पहनना, मुझे लिवाइस का जीन्स पहनना, व्हाई नॉट द इंडियन वाला पार्ट, वो तो सस्ता भी है, बट आप लोग कह रहे हो कि नहीं सर वो ब्रांड है, क्वालिटी है, समथिंग लाइक दैट, यू विल ऐड नंबर ऑफ फीचर्स टू दैट प्रोडक्ट। यानी वेब इफेक्ट सिंपल क्या कहता है, द हायर द प्राइसेस, the higher the satisfaction।
जितना प्राइस ज्यादा होगा इन लोगों के लिए उतना वो सैटिस्फैक्शन ज्यादा देता है। इसीलिए व्हेन यू सी कि हमारे एक्टर्स वाले पार्ट या आलिया भट्ट मान लो, शी विल आल्सो ऑलवेज बाय द ब्रांडेड वाला पार्ट। क्यों? उसके लिए जितना प्राइस हाई होगा उसको लगता है कि उतना सैटिस्फैक्शन ज्यादा मिल रहा है मुझे। दैट्स द केस ऑफ वैबल इफेक्ट एंड दिस इज एन एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड, जो लॉ ऑफ डिमांड नहीं फॉलो करता, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड के हिसाब से कम प्राइस होगा तो डिमांड ज्यादा होगा, जबकि यहाँ पे वैबल इफेक्ट में उल्टा हो रहा है, जितना प्राइस ज्यादा होगा उतना डिमांड भी ज्यादा होगा, क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सैटिस्फैक्शन भी ज्यादा दे रहा है। आंसर आपको सिंपली मिल गया। व्हाट इज वैबल इफेक्ट? इज एन एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड। किसने दिया था? थॉर्स्टीन वैबल। किस बुक में? थ्योरी ऑफ बेसिक क्लास। दिस कुड इजीली सॉल्व योर डिमांड वाला पार्ट। थैंक यू। हो गया सर? स्टार्ट। So last time I told you something about law of demand. Law of demand कहता था कि प्राइस ऊपर जाएगा तो डिमांड नीचे, या प्राइस कम होगा तो डिमांड ऊपर जाएगा। बट कितना ऊपर जाएगा कितना नीचे जाएगा उसके बारे में वो खामोश था। इसलिए we have the concept of elasticity of demand. This becomes important for the examiner. वो इसमें से डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो पूछेगा ही आपसे। अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या दिखाता है? नंबर 1, it shows the responsiveness of demand to the change in prices। यानी ये ईडी, यूजुअली हम इसको ईडी कहते हैं, ये आपको दिखाता है कि व्हाट इज द रिस्पांसिवनेस ऑफ डिमांड टू द चेंज इन प्राइसेस। डिमांड में क्या असर पड़ा जब प्राइस चेंज हुआ, जबकि लॉ ऑफ डिमांड वाज जस्ट शोइंग द डायरेक्शन, ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, कितना ऊपर कितना नीचे, यानी व्हाट वी कॉल एज मैग्नीट्यूड और सिंपली रेट ऑफ चेंज। ईडी आपको दोनों दिखाता है। लॉ ऑफ डिमांड आपको सिर्फ डायरेक्शन दिखा रहा था, जबकि ईडी विल टेल यू कि कितना चेंज हुआ डिमांड में जब प्राइस चेंज हुआ। यानी सिंपल आप देख सकते हो कि हाउ मच चेंज हैज occurred in demand when there has been any change in prices। Don't be confused, ED will tell you कि कितना change हुआ डिमांड जब प्राइस चेंज हुआ, यानी it will measure the magnitude of change। जो डेफिनेशन पूछा जाएगा तो सिंपल सा क्वेश्चन लिख लेना, ऑप्शन में देख लेना रेस्पॉन्स ऑफ डिमांड टू द चेंज इन प्राइस। अगर ये नहीं मिला तो ये तो जरूर होगा कि हाउ मच चेंज ऑकर इन डिमांड व्हेन देयर हैज बीन चेंज इन द प्राइस इज रिवील्ड बाय ईडी। ईडी पे क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो आई विल टीच यू अ सिंपल फॉर्मूला कि ईडी कैसे निकाला जा सकता है। ईडी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू divided by delta P into P1 divided by Q1। आप लोगों ने किया भी होगा। Where delta का मतलब है change in demand, that is your delta Q। delta P will show you change in price कितना होगा, delta P।
Delta Q is equal to Q2 minus Q1, जहां पे Q2 का मतलब है फाइनल डिमांड, क्या लाया आपने, Q1 का इनिशियल डिमांड, पहले आपने क्या कहा, डेल्टा P इज इक्वल टू P1 माइनस P2, जहां पे P1 का मतलब इनिशियल प्राइस, P2 का मतलब फाइनल प्राइस, और ये वाला becomes initial price and Q1 becomes initial demand. Just try to remember this formula. This will help you to score at least 1 mark in the examination. कि elasticity of demand किसके बराबर होता है? Delta Q divided by delta P into P1 by Q1. Simple. में delta Q shows the change in demand, which is equal to final demand minus first demand. Delta P will show you change in prices, which is equal to initial price minus the final price of the part. Yeah. You can also solve it ऐसे. Delta Q की जगह Q2 minus Q1 लिख सकता हूँ मैं. Delta P P1 minus P2 into P1 divided by Q1. This is the simplified method of ED. अब क्वेश्चन एक कर लो, assume वो पूछता है कि राम purchased 50 copies at the rate of rupees 10 and 100 copies at the rate of rupees 5. Find ED. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोलो. पहले आप क्वेश्चन में देखो कि वो डेटा में क्या क्या दिया है. वो बोले कोई राम है, he is purchasing 50 copies, यानी पहले वो 50 दे रहा है. This becomes the quantity first Q1. जबकि प्राइस उस टाइम की था 10 rupees, it becomes P1. After that, he is demanding 100 copies, it becomes Q2, and the price will become P2 is 5 रुपए. मैं लिख रहा हूं यहाँ पे वैल्यूज. Q1 is equal to 50, P1 is equal to 10, Q2 is equal to 100, P2 is equal to 5. Can we find ED? Yes. We can find easily. Simply just put it in the formula Q2 minus Q1 divided by P1 minus P2 into P1 divided by Q1. Q2 is 100 minus 50, P1 10 minus 5, P1 10, Q1 50. 100 में से 50 क्या बचा? 50 by 5 into 10 by 50. 5 ones are, 5 twos are, the answer becomes 2%. So इस क्वेश्चन को आप छोड़ोगे. Just try to find out कि वो आपको दे क्या कह रहा है. Just try to find out पहले क्या डिमांड कर रहा है, make it Q1. उस टाइम पे प्राइस क्या था, make it P1. दूसरी बात वो डिमांड क्या कर रहा है, make it Q2. प्राइस क्या था उस टाइम पे, make it P2. Then apply it in the formula, you will get the answer 2, for example. ये परसेंटेज में. That means जब price reduce हुआ from 10 to 5, there was 2% reduction in the demand or increase in the demand. That depends upon कि आप analysis कैसे कर रहे हो. This was what we expect from the demand chapter, and the most important being elasticity of demand.